Hello everyone, welcome to today's discussion on Panchayat Devolution Index, Panchayat Hastantaran सूचकांक. What makes the Panchayat Devolution Index important for the UPSC Civil Services exam? अर्थात पंचायत हस्तांतरण सूचकांक सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? Recently, published government report reveals the challenges confronting panchayats in India and analysis how each state has performed when it comes to the devolution of powers to these bodies. Here's all you need to know, and also to know about the history of Panchayati Raj institution in India. अर्थात अभी हाल ही में प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट में पंचायतों के सामने आने वाली चुनौतियों का खुलासा करती है, विश्लेषण करती है और इन निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण के मामले में प्रत्येक राज्यों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यहां ये सब आपको जानना है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं. तो देन फर्स्टली यू नो दिस टॉपिक्स बिलोंग्स Indian polity, means general studies paper 2. The Panchayati Raj system is a significant topic in the general studies. Moreover, the UPSC has previously asked questions on Panchayati Raj at various stages of the exam, ranging from basic to more advanced level. For instance, in 2018, UPSC asked the question in its main examinations, like as a assess the importance of panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources can the panchayats look out for financing developmental projects? स्थानीय सरकार के एक हिस्से के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन करें. सरकारी अनुदानों के अलावा पंचायतें विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किन स्रोतों पर विचार कर सकती हैं? Therefore, it is crucial to study this topic not only from a static perspective but also to track the related developments. So, why in the news? Recently, the Union Minister of Panchayati Raj released the Panchayat Devolution Index, which is based on a study conducted by the Indian Institute of Public Administration. The index was last published in 2014 and over the past decade, the national average score has increased from 39.92 to 43.89. हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक जारी किया, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किए गए एक रिसर्च या स्टडी पर बेस है. इंडेक्स आखिरी बार 2014 में प्रकाशित हुआ था और पिछले एक दशक में राष्ट्रीय औसत स्कोर 39.92 से बढ़कर 43.89 हो गया. As of 2024, India has 2.62 lakh panchayats, an increase from 2.48 lakh in 2013-14. Uttar Pradesh, Maharashtra and Madhya Pradesh recorded the highest number of panchayats in both 2013-14 and 2024. अर्थात 2024 तक भारत में 2.62 लाख पंचायतें होंगी, जो 2013-14 में 2.48 लाख से ज्यादा है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 2013-14 और 2024 दोनों में सबसे ज्यादा पंचायतें दर्ज की गई. The Indian Institute of Public Administration studied 172 panchayats across 68 districts in India to assess the performance of panchayat system based on 6 parameters: framework, functions, finances, functionaries, capacity building, and accountability. Using this data, the Indian Institute of Public Administration developed the Panchayat Devolution Index.
अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने भारत के 68 जिलों में 172 पंचायतों का अध्ययन किया और 6 मापदंडों के आधार पर पंचायत प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया, जिसमें से रूपरेखा, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता, क्षमता निर्माण और जवाबदेही। इस डेटा का उपयोग करके IIPA ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक को डेवलप किया। द इंडेक्स scores states on a scale of 0 to 100. Karnataka, Kerala and Tamil Nadu ranked highest on the index, while UP and Bihar showed the most significant improvement. अर्थात इस सूचकांक राज्यों को 100 से 100 के पैमाने पर अंक देता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। According to the latest index, Manipur, Arunachal Pradesh and Jharkhand are the lowest scoring states. Over the past decade, Manipur, Arunachal Pradesh and Haryana have experienced the most significant declines. Among the top 10 states, only Maharashtra, which ranks 4th overall, has seen a decrease in its score. अर्थात नवीनतम जारी किया गया सूचकांक में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड सबसे कम स्कोर वाले राज्य दिखते हैं। पिछले एक दशक में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा ने सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। टॉप 10 राज्यों में केवल महाराष्ट्र, जो कुल मिलाकर चौथे स्थान पर है, अर्थात इसके स्कोर में भी कमी देखी गई है। नोटेबली इन 2013-14 Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Chhattisgarh got the top scores. Since then, 18 states and union territories improved their scores while 11 recorded declines. अर्थात 2013-14 में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ को सर्वोच्च अंक मिले। तब से अब तक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अंकों में सुधार किया है, जबकि 11 ने गिरावट दर्ज की है। अब हम बात करें वुमेन रिजर्वेशन, महिला प्रतिनिधित्व की, तो while most states have 50% reservation quota for women in panchayats, 7 states and union territories fall below this threshold. These include मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड त्रिपुरा। अर्थात अधिकांश राज्यों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन कोटा है। 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा से नीचे हैं। इनमें एमपी, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा भी शामिल है। 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मीट और एक्सीड द रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड। ओडिशा हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ women among panchayat representation at 61.51%, followed by Himachal Pradesh at 57.5% and Tamil Nadu at 57.32%. दूसरी ओर 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रिजर्वेशन सीमा को पूरा करती हैं या उससे अधिक है। ओडिशा में पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 61.51% है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 57.5% और तमिलनाडु में 57.32%। उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एट 33.33% एज इट्स रेगुलेशंस अलाउ ओनली ए 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अर्थात यूपी में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात सबसे कम 33.33%, क्योंकि इसके नियमों में महिलाओं के लिए केवल 1/3 आरक्षण की अनुमति है। नेशनली the average proportion of women representatives is 56.44%, a slight increase from 45.9% in 2013-14. In 2013-14, there were 11 states with 50% or more women representatives. By 2024, this number had risen to 16 states. अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का औसत अनुपात 46.44% है, जो 2013-14 में 45.9% से थोड़ा ज्यादा है। वर्ष 2013-14 में
11 राज्य ऐसे थे जहां 50% या उससे ज्यादा महिला प्रतिनिधि थी। वर्ष 2024 तक यह संख्या बढ़कर 16 राज्यों तक पहुंच जाएगी, मतलब पहुंच चुकी है। और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व, while there is no formal reservation for SCs, STs and OBC, specific states have shown notable representation of the groups in पंचायत। यानी SC, ST और OBC के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नहीं, फिर भी कुछ राज्यों ने पंचायतों में इन समूहों का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व दर्शाया है। पंजाब में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का अनुपात सबसे अधिक है, यानी 36.34%। Means Punjab has the highest proportion of SC representatives at 36.34%. Chhattisgarh has the highest share of ST representatives at 41.04%. मतलब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 41.04% है। बिहार has the highest representation of OBCs at 39.02%. बिहार में भी OBC प्रतिनिधि सबसे अधिक है, 39.02%. In comparison, the national average representation for these groups is 18.03% for SCs, 16.22% for STs and 19.15% for OBCs. अब आप समझ सकते हैं कि इन समूहों के लिए राष्ट्रीय औसत प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों के लिए 18.03%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 16.22% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19.15% है। अब सवाल उठता है कि ये जो चीजें आई, मेन चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस। स्टडीज हैव शोन दैट कंसिस्टेंट फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोज मेजर चैलेंजेस फॉर पंचायत। मतलब स्टडी से यह पता चला कि निरंतर वित्त पोषण और बुनियादी ढांचा पंचायतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो हम सबसे पहले देखिए फंडिंग की बात करें। इन 2023-24 स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹47,018 crore to पंचायत according to the study, but only ₹10,761 crore was released as a November 2023. In 2020-21 states allocated ₹47,513 crore, of which ₹43,233 crore was released. मतलब आप समझिए कि वर्ष 2023-24 में राज्य सरकारों ने पंचायतों को 47,018 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन नवंबर 2023 तक केवल 10,761 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। इसी प्रकार से 2020-21 में देखें तो राज्यों ने 46,513 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिनमें से 43,233 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें। पंचायत इन सम स्टेट्स lack basic infrastructure. Only 7 states and union territories reported that 100% of their panchayat offices were pakka buildings, while in 21 states and union territories at least 3/4 of panchayat offices were pakka. यानी कुछ राज्यों में पंचायतों में बुनियादी ढांचे का अभाव है। केवल 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने बताया कि 100% पंचायत कार्यालय पक्के भवन थे, जबकि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 3/4 पंचायत कार्यालय पक्के थे। तो ये तो था जो इंडेक्स आया, उस पर अभी हमने आप लोगों के सामने ये डेटा रखा, एनालिसिस किया। अब हमें ये समझना जरूरी है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं का इतिहास क्या है। मीन्स what is the Panchayati Raj institution in India's history and significance? The Panchayati Raj system is a significant step towards grassroots democracy and empowerment of people in rural areas. By giving local bodies the power to govern themselves, the system promotes participatory democracy, where people can actively participate in decision-making processes that affect their communities.
पंचायती राज प्रणाली जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी और रूरल एरियाज में लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय निकायों को खुद प्रशासन करने की शक्ति देकर यह प्रणाली सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, जहां लोग अपने कम्युनिटी को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है। द पंचायती राज सिस्टम है इट्स रूट्स इन एंशिएंट इंडिया, where the village council known as the panchayat was the primary governing body. It was not until 1993 that the panchayat raj system was granted constitutional status and made compulsory for all states in India. मतलब यह समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें आज नहीं, प्राचीन काल से जुड़ी हैं। पहले ग्राम परिषद होते थे जिन्हें पंचायत के नाम से जाना जाता था, प्राथमिक शासी निकाय थी, लेकिन 1993 तक पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था और इसे भारत के सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया था। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 which came into effect on April 24, 1993 gave constitutional status to Panchayati Raj institutions, marking significant movement in the history of decentralization of political power to the grassroots level. यह था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जो जमीनी स्तर तक राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। This delegation of authority was not just a response to the demand for democracy, it also reflected one of the Mahatma Gandhi's core principles. He consistently advocated for a Panchayati Raj system which encourages local communities to participate in the management of their villages. अर्थात सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ डेमोक्रेसी की मांग का जवाब नहीं था, यह महात्मा गांधी के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक को दर्शाता है। उन्होंने लगातार पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की, जो स्थानीय समुदायों को अपने गांवों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। द 73rd Constitutional Amendment Act introduced Part 9 in the Constitution, which deals with the structure, powers and functions of panchayats. आर्टिकल 243 to 243O। मतलब यह समझिए कि यह लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम बोथ। मतलब यह कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों की संरचना, शक्तियों और कार्यों से रिलेटेड है। अर्थात पंचायतों के बारे में यदि समग्र अध्ययन करना है तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 वो यानी 243 to 243O। In recent times, the importance of Panchayati Raj has grown as effective local administration is necessary for India to achieve inclusive growth and address problems like climate change and rural-urban migration. PRIs are in a good position to ensure fair and sustainable development at the local level and respond to local demands. हाल ही के दिनों में पंचायती राजों का महत्व बढ़ गया, क्योंकि भारत के लिए समावेशी विकास हासिल करने और जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण शहरी प्रवास जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी स्थानीय प्रशासन आवश्यक है। पीआरआई स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष और सतत विकास सुनिश्चित करने और स्थानीय मांगों को जवाब देने की एक अच्छी स्थिति में है। अब देखिए, सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए कि पंचायतों का क्या महत्व है, आप अपने अधिकारों को जानें, तो इसके लिए पंचायती राज दिवस घोषित किया है और इसकी डेट निर्धारित की गई है 24 अप्रैल। द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन April 24th. The day was established in 1993 after the enactment of the 73rd Amendment Act, which introduced a 3-tier system at the village, block and district levels. अर्थात इस दिन की स्थापना यानी 24 अप्रैल
को जो सेलिब्रेट किया जाता है, यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के लागू होने के बाद हुआ, जिसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड देखिए सूचकांकों को आप याद रखें, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इतिहास क्या है, इसीलिए इस टॉपिक में हमने व्यापक रूप से चर्चा की ताकि आपको आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे इस टॉपिक से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।